DSP-CTD علی رضا کراچی میں قاتلانہ حملے میں شہید، موٹر سائیکل سوار 2 ٹارگٹ کلرز نے کریم آباد میں سر پر گولیاں مار کر نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے زخمی اپارٹمنٹ کا سیکیورٹی گارڈ وقار بھی دم توڑ گیا۔ واقعے کی جگہ سے 9mm کے 11 خول ملے ہیں۔ 4 گولیاں علی رضا کو، 3 بلڈنگ کے سیکیورٹی گارڈ کو لگی۔ علی رضا آبائی علاقے میں دوستوں سے ملنے آئے تھے۔ وہ شہید چوہدری اسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ مختلف تھانوں کے SHO رہے۔ ترقی کی گئی ہے، ان کو پتا تھا گاڑی آرمڈ تھی، جیسے یہ گاڑی سے اترا ہے اس پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ اس کا دفتر تھا، یہیں پہ آ کے بیٹھتا تھا۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ہیں چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو۔ علی رضا کو سیکیورٹی دی ہوئی تھی لیکن واقعے کے وقت تنہا تھے۔ جہاں واقعہ ہوا یہاں علی رضا کا آفس بھی تھا۔ DIG CTD اعجاز شیخ کہتے ہیں CTD کے تمام افسران کو تھریٹس ہیں، قاتلوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے واقعے کی کوئی CCTV سامنے نہیں آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے DSP علی رضا پر حملے کی مذمت کر دی۔ شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ IG کو تحقیقات اور قاتلوں کی گرفتاری کی ہدایت۔ کراچی کے گلشن حدید میں پولیس مقابلے کے دوران خاتون کی ہلاکت۔ DIG ایسٹ نے جوڈیشل انکوائری کے لیے ایڈیشنل IG کراچی کو خط لکھ دیا۔ غلام اصفر مہیسر کہتے ہیں ورثاء کے تمام تحفظات دور کریں گے۔ تفتیشی ٹیم عینی شاہدین، زخمی لڑکی اور کار ڈرائیور کا بیان قلم بند کرے گی۔ خاتون کے ورثاء نے نیشنل ہائی وے پر 2 دن سے دھرنا دیا تھا جو 32 گھنٹے جاری رہا۔ مقتولہ کے بھائی یعقوب سمو کہتے ہیں مطالبات کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دیں گے۔ نوشہر و فیروز میں سفاک باپ نے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر دی۔ ٹھارو شاہ میں باپ نے 15 دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم طیب نے بچی کو زندہ دفنانے کا اعتراف کر لیا۔ ملزم نے بیان دیا علاج کے پیسے نہ ہونے کے باعث معصوم بچی کو بوری میں بند کر کے دفن کیا۔ بچی کو پڑوسیوں کو دیا مگر انہوں نے واپس کر دی تھی۔ عدالتی حکم پر قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کی پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال میں دلچسپی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جائزہ لینے 1 روزہ دورے پر کراچی پہنچے۔ KPT ہیڈ آفس میں بڑے اجلاس کی صدارت کی۔ چیئرمین KPT اور پورٹ قاسم حکام نے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو ملک کی آمدنی میں اضافے، کاروباری برادری کو سہولتوں سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پورٹ پر معاملات میں مزید بہتری کے لیے ہدایات دی۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان جغرافیائی اعتبار سے خطے میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندری تجارت کا موزوں راستہ فراہم کرتا ہے۔ بندرگاہوں میں جدید نظام اور رسائی میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ برآمدات میں اضافے سے پاکستان اربوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے۔ پورٹ قاسم اور KPT پر کسٹم کلیئرنس کا وقت کم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا لیاری ایکسپریس وے کو کارگو ٹریفک کے لیے 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے۔ سامان کی ترسیل مزید بہتر بنانے کے لیے ملیر ایکسپریس وے کو بندرگاہ سے جوڑا جائے۔ وزیر اعظم کا کراچی بندرگاہ پر ہیکسن پورٹ ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل کا دورہ۔ آپریشنز اور کنٹینرز کی اسکریننگ سے متعلق سوال پوچھے۔ چیئرمین FBI کو جدید ترین سکینرز نصب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کراچی میں بزنس کمیونٹی کی ملاقات۔ وفد نے وزیر اعظم کو پورٹ پر مشکلات اور شپنگ لائنز کی زیادتیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے پورٹ پر کلیئرنس میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا۔ مسائل جلد حل کرنے کی ہدایت۔ وفد نے کہا بجلی سستی کریں گے تو ایکسپورٹ کو 6 ارب ڈالر تک بڑھائیں گے۔ ایکسپورٹ بڑھیں گی تو بیرونی قرض کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وزیر اعظم کو ایکسپورٹرز پر فکس ٹیکس ختم کرنے اور مقامی ٹیکس لگانے پر تحفظات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے FPCCI سے پورٹ پر بہتری کے لیے تجاویز مانگ لی۔
प्रोटेक्टेड सारिफीन पर करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है FIA बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सारिफीन पर करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ नाइंसाफी का अजाला किया जाए। जमात इस्लामी का बिलों में इजाफी यूनिट्स खत्म करके सारिफीन को नए बिल जारी करने का मुतालबा। नाअहल करप्ट टोला मुसल्लत है, इनसे कुछ नहीं संभल रहा। वोट से आने वाली हुकूमत ही मसाइल हल करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IPPs अवाम को लूटने में मसरूफ़ हैं, जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। क्या रियासत IPP से बात नहीं कर सकती? असम्बली अरकान ने अपनी मराआत बढ़ा ली। आम आदमी को टैक्सों तले दबा दिया गया। कराची से खैबर तक हर तबका चीख रहा है। लोग जेवर बेचकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए और रिलीफ ना दिया तो ये लावा फट जाएगा और फिर किसी को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। अवाम फैमिली के साथ शिरकत करें। हक दो अवाम तहरीक पूरे पाकिस्तान में चलेगी। दहशत गर्दी से निजात हासिल करनी है तो डायलॉग करें। सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रूटीन में मेरे अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे। उस पे मियांवाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने इस्लामाबाद के रहायशगाह पे रेड किया। किसी MNA को या अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के घर पर पुलिस का छापा। उमर अयूब घर पर मौजूद नहीं थे। अपोजिशन लीडर कहते हैं इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस ने छापा मारा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने मेरे काबिल जमानत वारंट जारी किए हैं। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर से इजाजत लेना होती है। हुकूमत हमारी आवाज दबाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वाज़ेह कर दूं, बानी PTI के वज़ीर-ए-आज़म बनने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। लीगी रहनुमा अब्दुल कयूम ने कहा उमर अयूब पर अगर मुकदमात हैं तो उन्हें खुद पेश होना चाहिए, मफरूर क्यों हो जाते हैं। JUI और PTI का मकसद आइन की बहाली है। दोनों का मकसद एक होगा तो एक हो जाएंगी। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं मौजूदा हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा बोले PTI राब्ता करेगी तो गौर करेंगे। PTI के कुछ दोस्त आए थे, मौलाना ने कमेटी बनाने का कहा, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। लीगी रहनुमा राना एहसान ने कहा PTI ने अपने दौर में जो कुछ किया वो सब भुला बैठे हैं। आज ये जमहूरी और आइन के पासदार बन गए हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ कमीशन। सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन कयाम के दौरान पार्लिमानी पार्टी और पंजाब के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी सदर से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी एक रोजा दौरे पर पेशावर जाएंगे। पार्टी कायदीन और वफूद से मुलाकात करेंगे। सूबे में तंजीम नौ के हवाले से पार्टी क़यादत से मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतालिक PTI उम्मीदवारों की पिटिशंस पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत। खुसूसी पासेस वाले ही कमरा अदालत में जा सकेंगे। दरख्वास्त गुजारान के 25 वकला को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। 30 सहाफ़ी कमरा अदालत जा सकेंगे। सर्कुलर जारी। शदीद गर्मी में कराची वालों के लिए बिजली ना पानी। अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी के मकीनों का जब्त जवाब दे गया। मस्जिदों से एहतजाज का ऐलान हुआ तो बड़ी तादाद में इलाका मकीन मुक्का चौक पर निकल आए। गुलशन इकबाल से आयशा मंजिल जाने वाली रोड बंद कर दी। पानी का गुजरता टैंकर हत्थे चढ़ गया। मुश्तइल अवाम ने पानी रोड पर ही बहा दिया। शिकवा किया टैंकरों के लिए पानी है, लाइन में क्यों नहीं है।
वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। अली अमीन गंडापुर की सेहत और तालीम का निज़ाम ठीक करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, इतने बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना नामुमकिन है। सर्विस डिलीवरी तभी बेहतर हो सकती है जब इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। असातिज़ा और पैरामेडिक्स को उनके डोमिसाइल वाले इलाकों में तैनात किया जाए। खून की अदम दस्तयाबी से हर साल मुतादिद जानें चली जाती हैं। सिंध में रज़ाकाराना खून के अतियात को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, 24 करोड़ आबादी में सिर्फ 10% लोग रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देते हैं। हमें इंसानियत के इज्तिमाई मकसद के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। तमाम लोग नेक मकसद में साथ दें और ज़िंदगी बचाने के लिए खून का अतिया दें। डेरा इस्माइल खान के इलाके में मकान पर मार्टर गोला गिरने से 2 खवातीन जान बहक, बच्चा और 2 खवातीन जख्मी। लवाहिकीन का लाशें जड़कनी मोड़ पर रखकर एहतजाज। कोयटा जाने वाली गाड़ियों और बसों की लाइनें लग गईं। हरनाई के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। आबी रहने से हरनाई पंजाब शाहराह पर भी ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम का कहना है कि पटरी को नुकसान पहुंचा, बहाली के लिए काम शुरू कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बादल बरस पड़े। मोहम्मद में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, भक्कर, पाकपतन, चिडियोट में बादल जमकर बरसे। मानसून हवाएं बलोचिस्तान में दाखिल। कराची का मौसम अब्र आलूद। शहर में आज से बादल बरसने का इम्कान। टमाटर और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कराची में 1 किलो टमाटर की कीमत 350 से 400 रुपये हो गई। भिंडी 320, अरवी 240, तुरई 160, जबकि 1 किलो अदरक 600 और लहसुन 500 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। कोयटा में टमाटर 250 रुपये किलो हो गया। फूल गोभी भी 200, भिंडी 320, मटर 380 और कद्दू 150 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। पेशावर में 1 किलो अदरक 800 रुपये की हो गई। सीमेंट की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते में सीमेंट 207 रुपये महंगी। कई शहरों में 50 किलो बोरी 1500 रुपये तक पहुंच गई। जितनी खत्म नबूवत के नाम पर काम करने वाली तंजीमें हैं, आलमी मजलिसे तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के प्लेटफार्म पर आप जमा हों। इस मुल्क की अमन के लिए 8000 उलमा शहीद हुए हैं। खत्म नबूवत हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ और ईमान का मसला है। पाकिस्तान में अमन के लिए 8000 उलमा शहीद हुए। यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई सब रहते हैं। कभी किसी को मसला नहीं हुआ। सब कानून और आइन को सुप्रीम समझते हैं। किसी सिख, ईसाई और हिंदू ने नहीं कहा वो कानून को नहीं मानते। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, एक अक़लियत वाले गलत बयानी करके रिपोर्ट्स बनाते हैं और दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। इसराइली फोर्सेस का खान यूनुस में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला। 16 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी जान से गए। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा मुज़ाहिरा। पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। मुज़ाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई और इंतखाबात करवाने का मुतालबा। मुरादे रसूल खलीफाए दोम 22 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत के बेमिसल हाकिम हज़रत उमर बिन खत्ताब का आज यौम शहादत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद आपकी खिलाफत का आगाज़ हुआ। आपने 10 साल के दौरे खिलाफत में इराक, ईरान और रोम में इस्लाम का परचम लहराया। क़िबला अव्वल पहली मर्तबा आप ही के दौर में फतह किया गया। हज़रत उमर को नमाज फजर के दौरान खंजर के वार से ज़ख्मी किया गया। यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को अजीम खलीफा शहीद हो गए। पाकिस्तान आर्मी का K2 बेस कैंप से कामयाब रेस्क्यू मिशन। कोहपैमा समीना बेग को सेहत ख़राब होने पर K2 बेस कैंप से रेस्क्यू किया गया। समीना बेग बैनुल अक़वामी सतह की K2 एक्सपेडिशन का हिस्सा थी।
समीना को 5 जुलाई को सेहत की संगीन हालत के पेश नज़र मिशन छोड़ना पड़ा। इब्तदाई तौर पर कोह पैमा को K2 बेस कैंप मुंतकिल किया गया, जहां घोड़े पर वापस स्कूल ही ले जाया गया। आर्मी एविएशन की फ़्लाइट मौसम की ख़राबी की वजह से मुमकिन न हो सकी। समीना बेग की स्कूली से बजरिया सड़क मुंतकिली। पाक आर्मी डॉक्टर्स की टीम भी CMH स्कर्दू में मौजूद। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम डायमंड लीग में मेडल न जीत सके। पेरिस डायमंड लीग के जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम चौथी पोजीशन पर रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप असल हदफ है। चाहता हूं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी मुकम्मल फिट हों। कौमी रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश यही होगी टीम में बेहतरी का तसलसल बरकरार रख सकें। फिट रहना खिलाड़ियों की अहम जिम्मेदारी है। कराची में जारी फिजिकल एंड फिटनेस कैंप का दौरा, कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों से मुलाकात की, टिप्स भी दी। और यूरो कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। स्पेन, फ्रांस के बाद इंग्लैंड और नेदरलैंड्स ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश टीम ने स्विट्जरलैंड को इवेंट से बाहर किया, पेनल्टी शूटआउट पर कामयाबी समेटी। तुर्की की टीम टॉप 4 में जगह बनाने में नाकाम। नेदरलैंड्स ने 2-1 से शिकस्त दी।